Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fine. Myself Subhas, again in front of you. Today we will start next chapter, cash book. Before it we have studied about journal, GST. GST was also a part of journal. Journal is the book of original entry. So when number of transactions in a business are more, a single book journal is not sufficient. So as per double entry system, in place of journal, different subsidiary books can be prepared. And these subsidiary books are 8 in number. Cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. So first of them is cash book. Cash book is a book of original entry as well as principal book also. ये एक लेजर का पार्ट भी है. हम जर्नल के बाद एक और बुक प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है लेजर. इन लेजर different accounts are opened on different pages so that we can get each and every information relating to one account at one place. So it works as a journal as well as ledger also. So when we prepare cash book, we need not to open cash and bank account in ledger. तो ये जर्नल का काम भी करती है, लेजर का भी काम करती है. तो क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. जो भी नकद के लेन देन है, आइदर कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अदर ट्रांजेक्शन्स लाइक क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स और अदर्स आर नॉट रिकॉर्डेड. ओनली cash transactions are recorded in cash book. So it is a journal as well as ledger also. One question is asked, what is the difference between cash book and cash account? When we prepare ledger, we open cash account in ledger. So cash book is different from cash account. Cash book is a part of journal while cash account is a part of ledger. In cash book, both aspects of a transaction are recorded, debit as well as credit, while in cash account only a one aspect, either debit or credit, is recorded. Or there may be some other differences like cash book is a separate book which is maintained to record cash transactions, while cash account is an account in the ledger. So when cash account is opened in the ledger, posting is done in this account from journal, while cash book is a book of original entry. When it is prepared, no need to post into ledger. So we can say that cash book is a journalized ledger. ये journal का काम भी करती है, ledger का काम भी करती है. तो when we prepare cash book, we need not to open cash account in ledger. So next topic is types of cash book. Cash book is of 4 types. First is simple cash book. So in this cash book, there is only one column for amount for cash. One column debit side, another column is credit side. Second is 2 columnar cash book. In this cash book, there are 2 columns for amount. One is for cash, second is for bank. इसमें हम डेबिट और क्रेडिट साइड, बोथ साइड्स वी विल, मैम आई नीड, तो वी विल प्रिपेयर 2 columns for amount. One is for cash, second is for bank, both the sides.
There may be other books, two columnar cash books, like discount and cash column. One is discount and bank column. So these are not a part of our syllabus. We will do only the cash book with cash and bank columns. Third, three columnar cash book. So in this cash book there are three columns for amount. One column for cash, second column for bank, and third column for discount. So it is not a part of our syllabus, so we will not do this book. And fourth one is petty cash book. Petty cash book is a separate book which is prepared to record small expenses, which are expenses which are of small amount. We record in a separate book that is called as petty cash book. So a separate cashier is appointed to maintain this book, who is called as petty cashier. So it is a part of our syllabus. So we will do simple cash book, two columnar cash book, and petty cash book. Three columnar cash book we will not study as it is not a part of our syllabus. Now the format of cash book. First, simple column cash book. In simple column cash book there is only one column for amount. This is the format. This is the one column for amount, then others column, it is debit side, right on the top left side debit, this credit side, right here credit. So in this cash book, first column is for date, then you can write here particulars, or we generally write receipts. Debit side of cash book, we record all receipts, cash receipt. Whatever amount is received in cash, you will record to the debit. Then one column is for voucher number. We prepare vouchers before recording transactions. तो वो जो वाउचर का नंबर है वो नंबर आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे. इफ वाउचर नंबर इज गिवन इन द क्वेश्चन यू विल रिकॉर्ड, अदरवाइज लेफ्ट दिस कॉलम ब्लैंक. नेक्स्ट कॉलम इज लेजर फोलियो, LF. तो कैश बुक से जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं या बाकी अकाउंट्स हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो लेजर के जिस पेज पर इसकी पोस्टिंग हुई है वो पेज नंबर यहाँ मेंशन करेंगे. एज वी हैव नो लेजर, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द रियल बुक्स, तो यू विल लेफ्ट दिस कॉलम ऑल्सो ब्लैंक. आपके पास कोई लेजर फोलियो या लेजर का पेज नंबर नहीं होगा. वाउचर नंबर के लिए अगर गिवन है क्वेश्चन में यू विल राइट, नॉट गिवन देन लेफ्ट कीप इट ब्लैंक. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर अमाउंट, rupees. So these are the columns which are prepared in cash book. Same columns are prepared to the credit side. Date. So in particulars we will write payments. Credit side we record all payments which are made in cash. Then voucher number, ledger folio, amount. Rupees. So dear students, the cash book has two sides, left and right. Left side is called as debit side, right side is called as credit side. So in left side, debit side, when we record a transaction we will use the word to cash, to sales या जो भी है. And in credit side we will use the word buy.
जो भी पेमेंट्स है, बाई परचेज, बाई पे टू राम, बाई वट एवर इज दैट। तो सिंपल फंडा ऑफ प्रिपेयरिंग सिंपल कैश बुक इज दैट record all receipts, whatever money is received in cash, record it to the debit, and how much money is paid in cash, आपने जो नकद पे किया आप क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। अदर ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। कैश आया है आप डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, कैश पे करा है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो, दैट्स ऑल। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ इसको बैलेंस कर लो, भी टोटल रिसीट्स कर लो, टोटल पेमेंट्स कर लो, उसमें से रिसीट्स में से पेमेंट लेस कर दो, बैलेंस कैश का बैलेंस बच जाएगा, कितना कैश अवेलेबल है। We will start from the numericals. So we will do illustrations. Exercise you are to do yourself. Open book. This is page number 11.6. Illustration 1. Page 11.6. Illustration first. Enter the following transactions in a single column cash book. This is single column cash book. 2017 March 1. First you will write the date. Year 2017 March 1. Commence business with cash. Rupees 20,000. 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा. इट इज़ ए रिसीट फॉर बिजनेस. बिजनेस में 20,000 रुपये आए तो डेबिट में रिकॉर्ड करो 20,000। किस फॉर्म आए, वो कैपिटल है तो राइट हियर टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जो पैसा लगाया उसने वो कैपिटल है, तो ये जो 20,000 इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ओके, देन मार्च 2 बोट गुड्स फॉर कैश। नकद गुड्स खरीदा तो पेमेंट करी, रिकॉर्ड इन पेमेंट। 2017 मार्च 2। खरीदा तो परचेज है, राइट हियर बाई परचेज। अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट मार्च 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद गुड्स सेल करा तो कैश रिसीट हुआ, रिकॉर्ड रिसीट साइड डेबिट। मार्च 5 टू सेल्स 4,000। इन मार्च 2 परचेज इज 5,000 नॉट 20, तो इट इज 5,000। ओके, देन ऑन मार्च 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो टू सेल्स अकाउंट 4,000। देन मार्च 10 गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा है, नो पेमेंट इज मेड, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ नकद के जो कैश ट्रांजेक्शन है वी विल रिकॉर्ड ओनली। 13 पेड टू रवि, पेमेंट है तो पेमेंट में शो करो। मार्च 13 बाई रवि, अमाउंट इज 7,000। कैश सेल्स है, अगेन कैश इज रिसीव्ड 15 को 8,000। मार्च 15 टू सेल्स 8,000। देन मार्च 18 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नकद फर्नीचर खरीदा, पेमेंट की है, पेमेंट में रिकॉर्ड करो। फर्नीचर है, ये गुड्स हो तो परचेज, अगर असेट खरीदे तो बाई असेट, तो बाई फर्नीचर 6,000। और नेक्स्ट है 20 को पेड वेजिस, तो बाई वेजिस पेमेंट है 380 बाई वेजिस। पेड रेंट, अगेन पेमेंट 24 बाई रेंट। $400।
Commission received, receipt है तो record to the debit 26 to commission. Amount is 600. Commission account. Next, withdrew for personal expenses. Drawings है, पेमेंट बिजनेस से पैसा गया तो पेमेंट में 100 करो 28 को बाय ड्रॉइंग. $1000. नेक्स्ट, पेड सैलरी तो बाई सैलरी 31 को बाई सैलरी. Amount is 900. So we have completed all the transactions. Now you will balance the cash book. अब इसके बैलेंस के लिए, अब ये तो हैं सारे रिसीट्स डेबिट में, क्रेडिट में पेमेंट्स हैं, तो ऑलवेज रिसीट टोटल विल बी मोर, क्योंकि जितनी रिसीट्स हैं उससे ज़्यादा तो पे नहीं कर सकते. तो रिसीट का टोटल करें आप. फर्स्ट इट इज़ 24 और 8 32 32,600. Okay, you will write the same total to the credit, same 32,600 here. अब ये टोटल रिसीट्स हैं, दिस इज द टोटल ऑफ रिसीट साइड. ये पेमेंट्स हैं तो सारी पेमेंट इसमें से लेस कर दो, कैश का बैलेंस बच जाएगा. आप लिखोगे यहाँ लास्ट डे को March 31 बाई बैलेंस CD. CD मीन्स कैरी डाउन. तो टोटल ऑफ असेट्स है, वही टोटल आपने यहाँ लिखा, इसमें से टोटल पेमेंट्स लेस कर दो. इट विल बी कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ. तो ये टोटल करो, ये है 80, देन 9 और 4 13, 3 16, 1 2 2 6 8 7 15 और 5 20. तो ये पेमेंट्स का टोटल है, रिसीट्स का टोटल है 32,600. तो इसमें से लेस कर दो 29,911 11,920. तो इट विल बी द बैलेंस ऑफ कैश बुक 11,920. तो यू विल राइट हियर 11,920. दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द मंथ. तो आप ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ब्रूट फॉरवर्ड करोगे डेबिट साइड में. अभी ये ईयर है 2017, मार्च के बाद आएगा अप्रैल 1. यू विल राइट हियर टू बैलेंस BD. BD मीन्स ब्रोट फॉरवर्ड, पिछले मंथ से वो आगे लेके जाया गया. तो ये बैलेंस है 11,920. तो इन एवरी क्वेश्चन यू विल ट्रांसफर द closing balance of 1 month at the beginning of new month. So your question is completed now. Simple. Only just record all receipts to the debit side, all payments to the credit side, and at the end balance the cash book. We will solve one more question. Format will be the same. Page also. Question number 2, students, you will do it yourself, same procedure. Now see illustration number 3. In case any discount is allowed or received, so you will not record discount here because there is no discount column. Net amount after deducting discount you will record to the column of amount.
डिस्काउंट लेस करने के बाद जो मनी रिसीव हुआ आप डेबिट में रिकॉर्ड करो, या डिस्काउंट लेस होने के बाद जो पे किया तो आप क्रेडिट में शो करो। डिस्काउंट का जो अमाउंट है दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, जो डिस्काउंट की एंट्री है एक और बुक प्रिपेयर करते हैं हम लास्ट में, जर्नल प्रॉपर, या जिसको जर्नल ही बोलते हैं, वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सी इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज है 11.9, पेज 11.9, इलस्ट्रेशन 3rd। Write up a single column cash book for the month of April 2017 of Mr. Vikas Oberoi from the following transactions. तो 2017 April 1, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, तो ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे टू बैलेंस BD, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ब्रॉट फॉरवर्ड करके आपको शो किया था। तो टू बैलेंस BD 2,50,000, और इसके बाद है अप्रैल 2 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये पैसा बैंक में जमा किया है तो हम पेमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, पैसा गया, पेमेंट है, बैंक में पे करा। तो 2017 अप्रैल 2, बाई बैंक, क्योंकि बैंक में मनी डिपॉजिट हुआ। अमाउंट इज 75,000। किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। ओके। 5th, परचेज गुड्स, भाई नाम नहीं किया ना तो कैश है, तो पेमेंट हुई होगी बाई परचेजेस। अप्रैल 5 बाई परचेज 40,000। Purchase goods from Ramesh, name is given, so it is credit purchase, we will not record it. It will be recorded in purchase book. 10th, purchase furniture for cash, again cash transaction है, payment करी है, तो buy furniture 25,000, 10 को buy furniture 25,000। लोन गिवन टू चरण दास, अब चरण दास को लोन दिया, पेमेंट तो करी है, तो आप क्रेडिट में लिखो 11 को बाई चरण दास लिख दो या बाई लोन लिख दो, आपकी एज इट इज़, आपकी मर्जी है। 11 को बाई चरण दास 20,000। अमाउंट इज 20,000। आप लोन लिख सकते हो ब्रैकेट में। नेक्स्ट, पेड टू रमेश, अगेन पेमेंट है तो बाई रमेश 28,500। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, अब जो पेमेंट करी है 28,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड हियर। इसके लिए जर्नल है, जर्नल में रिकॉर्ड करो। 14 को इशूड चेक टू ए क्रेडिटर, भी चेक दिया है तो पेमेंट बैंक से जाएगी, कैश बैलेंस विल नॉट रिड्यूस, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड इट। गुड सोल्ड टू विष्णु फॉर कैश, ये नकद बेचा है तो कैश आया डेबिट साइड में। टू सेल्स, आप विष्णु नहीं लिखोगे क्योंकि जब गुड्स कैश में सेल करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विष्णु का अकाउंट ओपन नहीं होगा। On 15, टू सेल्स 36,000। टू सेल्स अकाउंट 36,000। Then 16, cash sales of rupees 1,20,000, of which banked on 20th April 1 lakh। भाई 16 को गुड सेल करा है नकद, तो 16 को तो कैश रिसीव हुआ, तो रिकॉर्ड 1,20,000।
on 16 2 sales 1,20,000। अब इसमें से 1 लाख रुपीज़ वो बैंक में डिपॉजिट किए हैं 20 को, तो 20 को कैश कम होगा 1 लाख, तो आप 20 को रिकॉर्ड करो बाई बैंक 1 लाख। 22 रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, तो टू गंगाराम रिसीट है 22 को, $19,600 डिस्काउंट अलाउड होगी 400, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड, नेट अमाउंट जो रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड कर दो। 24 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, भाई बैंक से पैसे निकाले तो ऑफिस में आए, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, रिकॉर्ड टू द डेबिट टू बैंक 24। अमाउंट इज 25,000। देन 25 परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स, इसके लिए हम पोस्टेज अकाउंट ओपन करते हैं, पेमेंट है तो पेमेंट में रिकॉर्ड करो 25 बाई पोस्टेज 1,000, 25 बाई पोस्टेज 1,000। नेक्स्ट पेड सैलरी टू अकाउंटेंट, तो बाई सैलरी 12,000, 28। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, तो बाई रिपेयर, फर्नीचर रिपेयर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ओनली रिपेयर 1,500, डेट है 29 बाई रिपेयर 1,500। ओके, तो यू विल बैलेंस इट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो प्रोसीजर इज सेम, पहले आप डेबिट का टोटल करो, वो है 4,50,600, एक लाइन छोड़ दें बैलेंस के लिए, 4,50,600, you will write the same total to the credit 4,50,600। तो इस टोटल में से बाकी सारे जो अमाउंट्स है वो लेस कर दो, बैलेंस आ जाएगा एट द एंड। अप्रैल का एंड होता है 30th, तो बाई बैलेंस CD टोटल, ये रिसीट्स का टोटल है, सेम टोटल यहाँ लिखा है, इसमें से सारी पेमेंट्स लेस कर दो, तो इट विल बी 147,600। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड ऑफ अप्रैल। तो अब इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल के बाद मई 1 टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन सेम अमाउंट 147,600। ओके, तो इन दिस वे यू विल प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ 1 कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में GST भी है, कोई बात नहीं, GST अगर रिसीव हो तो वो आउटपुट आप डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, अगर पे करते हो तो इनपुट है, आप क्रेडिट में शो कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इज आल्सो सेम, तो वी विल डू ओनली क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।